جنہوں نے اپنی لون پیمنٹس کو لیٹ پے کیا، تو یہ بیسیکلی چیریٹی نہیں تھی پہلے اسلامک بینکنگ میں، اس کو ڈسپلن کے لیے ایڈ کیا، اور یہ علماء کا تھا فتویٰ کہ آپ اس کو ڈسپلن میں لائیں۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اب لوگوں کو یہ ہوتا ہے، اس میں لکھا جاتا ہے باقاعدہ کہ یہ آپ کی چیریٹی ہے اور یہ واجب ہے، اور خدا نہ خواستہ ان کیس کوئی ایسا انسٹانس آ گیا جس میں وہ چیریٹی پے نہیں کر سکتا، تو بینک کیا کرتا ہے؟ بینک ایک ایفیڈیوٹ لیتا ہے شریعت سے بیٹھ کر، اس میں لکھا جاتا ہے کہ یہ واجبل ہے اور میں مرنے سے پہلے اس کو ادا کروں گا، اور اس کی اماؤنٹ ڈکلیئر کی جاتی ہے۔ تو چیریٹی از ناٹ پارٹ۔ کنونشنل بینک میں کیا ہے؟ میٹر چل رہا ہے، آپ 10 دن لیٹ آئیں، 20 دن آئیں، نو ایشو، میٹر چل رہا ہے، جس دن آئیں گے اس دن حساب کریں گے، اور اس پیسے کو پارٹ آف دا ایکسٹرا انکم، جس کو ہم NFIs کہتے ہیں، اس کا وہ حصہ بناتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی وہی بات ہے کہ کنسیپٹ کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اس کی بیس کو اور اس کی لاجک کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بیسیکلی چیریٹی کا کنسیپٹ رکھا گیا ہے۔ ادروائز آپ کا مراوہ ہو گیا ہے، آپ 20 سال کے بعد بھی بینک میں آئیں گے، بینک اس ٹرانزیکشن کے اوپر 1 روپے ایکسٹرا نہیں لے سکتا۔ اگر کوئی لے گا تو اس میں یہاں ایک چیز اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گی، میزان بینک بھی اسی طرح کرتا ہے۔ میزان کا جو بھی چیریٹیبل کنٹریبیوشن ہے وہ ایک وقف انسٹیٹیوٹ ہے، احسان ٹرسٹ، وہ احسان ٹرسٹ کو جاتا ہے، اور احسان ٹرسٹ نے ابھی جیسے اسلامیہ یونیورسٹی کے لیے اسٹوڈنٹ لونس کی اسکیم ایک دی ہے قرض حسنہ کی بیس پہ، تو آپ اب بات یہ کر سکتے ہیں کہ الٹیمیٹلی تو وہ اسی طرح اسٹوڈنٹس کو بینیفٹ کر رہا ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں آ رہی، وہ یہاں پہ ڈائریکٹلی کسی اور انسٹیٹیوشن کو نہیں مل رہی، وہ ایک وقت شدہ ادارے کو جا رہا ہے، اور پھر وہاں سے آگے اس کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے۔ جی، کوئی اور کوشچن کسی کا؟ کافی تھورو سیشن تھا تو بڑا کوئی کر لیں، پھر آپ بچوں کا، آپ لوگوں کی اجازت ہو کوئی کر لیں بچوں کا، پھر ہم چلے نہیں کچھ نہیں کرتے ہم۔ اچھا، بس اس کے بعد ریفریشمنٹ بھی ہے آپ لوگوں کے لیے، تو جب تک ریفریشمنٹ آتی ہے تب تک ایک کرنسی اویئرنیس کا ہے ہمارے پاس سیشن میں، ہم کو انکلوڈ کرتے ہیں چھوٹی سی ویڈیو ہے جس میں جو ہمارے کرنسی نوٹس ہیں ان کے جو سیکورٹی فیچرز ہیں نا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو یہ میں پلے کر رہا ہوں، یہ آپ لوگ دیکھ لیں اس کو۔ حکومت پاکستان کی جانب سے جاری ہونے والے پاکستانی نوٹ دلکش اور خوبصورت ڈیزائن کے حامل 100، 50، 20، 10، 500، 1000 اور 5000 کے نوٹ ہمارے اس پر حیات اور عظیم شان تاریخ کے عکاس ہیں۔ ان بینک نوٹوں کا اجرا اسٹیٹ بینک آف پاکستان 2005 سے کر رہا ہے۔ بابا قوم کے بابقار پورٹریٹ کے ساتھ ہمارے تمام بینک نوٹ نہ صرف یکساں طور پر قائد اعظم عظمت کے عکاس ہیں بلکہ ساتھ ہی شناختی علامات اور منفرد نقش و نگار ہر نوٹ کو پہچاننے میں صارفین کی مدد کرتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینک نوٹ کی ساخت اور ڈیزائن اقوامی معیارات کی علامات کو خصوص طور پر اجاگر کرے تاکہ عام صارفین انہیں بآسانی شناخت کر سکیں اور جعل سازی سے دور رہ سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی بینک نوٹ کی منفرد خصوصیات جو آپ کو کہیں بھی کسی بھی وقت اصل نوٹ کی شناخت میں معاون ہو سکتی ہیں، اور جعلی نوٹ کو پہچان کر آپ بر وقت اپنے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ واٹر مارک 100، 50، 20، 10، 500، 1000 اور 5000 کے نوٹوں کے بائیں جانب شیروانی میں ملبوس قائد اعظم کی تصویر اور اس نوٹ کی مالیت کا واٹر مارک دیکھا جا سکتا ہے۔ حفاظتی دھاگا 100، 500، 1000 اور 5000 کے نوٹ پر بائیں جانب ایک حفاظتی دھاگا ہے جو آپ اپنے پر عمودی پٹی نظر آتا ہے۔ اس چمکدار پٹی پر نوٹ کی مالیت یعنی 100، 500، 1000 اور 5000 کے ہندسے لکھے جا سکتے ہیں، جبکہ دیگر نوٹوں یعنی 10، 20 اور 50 روپے کے نوٹ میں ایک عمودی دھاگا ہے جس پر نوٹ کی مالیت کا ہندسہ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان لکھا ہوا ہے۔ آر پار نظر آنے والے ہندسے 100، 50، 20، 10، 500،
1000 और 5000 के नोटों के सामने बाएं जानिब ऊपर की तरफ नोट के हिस्से टुकड़ों में नजर आते हैं, लेकिन रोशनी में देखने से नोट की पूरी मालियत वाज़ेह होती है। रंग बदलता झंडा। 500, 1000 और 5000 के नोट के सामने की तरफ दाएं जानिब ऑप्टिकल वेरिएबल इंक से रंग बदलता झंडा उभरी हुई छपाई में तबाह है और झंडा मुख्तलिफ ज़ावियों से देखने पर रंग बदलता नजर आता है। उभरे हुए निशानात। 5 के नोट में बाएं जानिब उभरी हुई छपाई में 3 दायरे, 1000 के नोट में 2 और 500 के नोट में 1 दायरा नजर आता है, जबकि 20, 50 और 100 के नोट में दायरे की जगह उभरी हुई लकीरें देखी जा सकती हैं। 100 के नोट में 3, 50 के नोट में 2 और 20 के नोट में 1 लकीर नजर आती है। इन दायरों और लकीरों की मदद से बीनाई से महरूम अफराद छूकर नोट की मालियत पहचान सकते हैं। पोशीदा इनसे। कायद-ए-आज़म की तस्वीर के दाएं जानिब नोट की मालियत का हिस्सा पोशीदा है, जो 20, 50, 100, 500, 1000 और 5000 के नोट को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखे जाने पर नुमायां होता है। उभरी हुई छपाई। मखसूस छपाई के तहत 100, 50, 20, 500, 1000 और 5000 के नोटों पर इन नोटों की मालियत के हिस्से कायद-ए-आज़म की शेरवानी दाएं और बाएं किनारों पर उभरी हुई लकीरें तबाह की गई हैं, जबकि इन्हीं किनारों की पिछली सतह बिल्कुल हमवार है। अल्ट्रा वायलेट लैंप में नजर खसूसियात। जब 5000 के नोट को अल्ट्रा वायलेट रोशनी में देखा जाता है तो हिफाजती धागे में नीली और पीली चमकदार पट्टियां नजर आती हैं और कायद-ए-आज़म की तस्वीर के बाईं तरफ पसे मंजर में खूबसूरत डिजाइन और नोट के मुख्तलिफ हिस्सों पर लेमन ग्रीन फाइबर की छोटी चमकदार लकीरें नुमायां होती हैं। 1000 के नोट को अल्ट्रा वायलेट रोशनी से गुजारने पर हिफाजती धागे में पीली और फिरोजी रंग की चमकदार पट्टियां नजर आती हैं और बैंक दौलत पाकिस्तान की जगह नक्शो निगार और नोट के मुख्तलिफ हिस्सों पर सब्ज रंग की फाइबर की छोटी छोटी चमकदार लकीरें दिखाई देती हैं। जब 500 के नोट को अल्ट्रा वायलेट रोशनी से गुजारा जाता है तो धाती धागे में पीली और गुलाबी माइल सुर्ख पट्टियां नजर आती हैं और बैंक दौलत पाकिस्तान की जगह दिलकश फूल बना नजर आता है, जबकि नोट के मुख्तलिफ हिस्सों पर नीले रंग की फाइबर की चमकदार लकीरें भी नजर आती हैं। अल्ट्रा वायलेट लैंप में 100 के नोट के हिफाजती धागे में सब्ज और नीली चमकदार बना, जबकि नोट पर नक्शो निगार और नीले रंग की फाइबर की लकीरें भी नजर आती हैं। 50 के नोट को अल्ट्रा वायलेट लैंप में देखने से हिफाजती धागा चमकदार पीला नजर आता है और नोट पर खूबसूरत नक़ूश और नीले रंग के फाइबर के टुकड़े भी नमूदार होते। 20 के नोट को अल्ट्रा वायलेट रोशनी में देखे जाने पर हिफाजती धागा चमकदार नीला नजर आता है और नक्शो निगार के साथ नीले रंग की फाइबर की छोटी छोटी लकीरें भी दिखाई देती हैं। 10 के नोट को अल्ट्रा वायलेट लैंप से गुजारने पर हिफाजती धागा पीला नजर आता है और खूबसूरत नक़ूश के साथ फाइबर नीले रंग के छोटे छोटे टुकड़ों में नुमायां होता है। हमारे नोट हमारी पहचान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, इसके बारे में कोई सवाल आप लोगों का नोट के हवाले से? अच्छा चलें सेशन को वाइंड अप करते हैं। हाँ जी सर, आज कल एक न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है कि करेंसी हमारी चेंज हो रही है। नहीं, वो नहीं हो रही। उसमें तो स्टेट बैंक की आपने प्रेस रिलीज भी देखी होगी शायद टीवी पे भी कि वो नहीं अभी तक ऐसा कोई बोला है। सर, इससे एनी चांस कि हम पेपरलेस की तरफ चले जाएं कि प्लास्टिक के नोट इस तरह कैनेडियन डॉलर्स हैं
जो अनब्रेकेबल होते हैं, हम उस तरफ मूव करेंगे आगे? देखो फ्यूचर में डिफरेंट तरह की है वो सजेशन या डिफरेंट तरह की बैटरी चल रही होती है, तो गोइंग फॉरवर्ड जाहिर सी बात है जहाँ एडवांसमेंट की तरफ हम जा रहे हैं तो उसी तरफ हम लोग भी जाएंगे, तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मुजफ्फर साहब से कि सर हमारा सेशन कंप्लीट करवा दें। मैं पहले रिक्वेस्ट करूँगा मैडम अरीबा से कि वो मुफ्ती साहब को शील्ड जो है प्रेजेंट करें। मैडम ये बैंक की तरफ से आपके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से अगर आप लोगों के मैडम कमेंट हो या आपके सर कोई तो मैं नोट ऑफ थैंक्स देना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच NRSP का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ हमारे स्टूडेंट्स के साथ ये एक अवेयरनेस सेशन कंडक्ट किया, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस सेशन को फैसिलिटेट किया। और आगे भी आप हमारे स्टूडेंट्स की कमिटमेंट देख सकते हैं। इससे पहले हमारा कुछ एक्सपीरियंस रहा है NRSP के साथ कुछ वेबिनार्स वगैरह का, तो जब भी मेरी बात होती है मेरी अपने स्टूडेंट के बिहाफ पे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होगी, वो ये कि वी नीड मोर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन चाहिए, वेबिनार्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स चाहिए, इंटर्नशिप की, प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो एक फील करते थे एक ड्रॉबैक कि वो एक अंडर प्रिविलेज्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, एक छोटी यूनिवर्सिटी से, एक ऐसे इलाके से बिलोंग करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है, तो वहाँ पे उनको इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किए जाएँ जहाँ पे वो हमारी बैंकिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकें। So on behalf of the students as well, I would like to thank you all for your presence here and your very precious time. Thank you so much. ओके जी, थैंक यू वेरी मच। आज मुफ्ती साहब ने मेरे ख्याल में आपको कुछ हाई डोज लेक्चर्स को मैं कहूँगा कि आपको दिया है, और यू आर लकी कि आपको ये फ्री में मिला है। बिलीव मी, जैसे सर ने कहा कि आप इंटरव्यू जाएंगे तो एक सवाल इसमें से आएगा, एक आध, मुझे नहीं लगता कि एक आध आएगा, इसमें आधा इंटरव्यू तो आपको ऐसे ही होगा। और ये जो चीज़ें मुफ्ती साहब ने आपको बताई है, देखिए कुछ चीज़ें जब हमारे करीब होती हैं या मुफ्त में होती हैं या हमारी सराउंडिंग में फ्री मिलती है, हमें उनकी कदर नहीं पड़ती। होपफुली आप लोग जाएंगे, जब प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे, मार्केट को टच करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि हमने आज क्या सीखा था। एक बात। दूसरी बात, लोग पाकिस्तान में मोस्टली बैंक से घबराए हुए हैं। यार बैंक में कौन जाएगा, काम ज्यादा होता है, ऐसे ही है। कितने लोग कहते हैं बैंक में काम ज्यादा होता है? मैं भी कह देता हूँ यार आपके लिए, चलो हाँ जी। अब ऐसे रीजन क्या है? दूसरे डिपार्टमेंट्स काम करते नहीं, काम उनका भी ज्यादा होता है, करते नहीं। तो जिस दिन सब डिपार्टमेंट्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया तो बैंक्स का काम भी एट पार ही आएगा। नंबर 1। नंबर 2, आज का टेक अवे, प्लीज इस लेक्चर को सीरियसली लीजिएगा आप लोग। मुफ्ती साहब ने आपको मेरे ख्याल में 6 महीने का कोर्स 2 घंटों में पढ़ाने की कोशिश की है। अब ये इम्प्लीमेंट कब होगी? जब आप घर जाके रट्टे भी मारेंगे। रट्टा मारना अच्छी चीज है, इनके साथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
तो होपफुली हम आपको फ्यूचर में पाकिस्तान में भी हर जगह देखेंगे, बहावलपुर में तो होपफुली आप लोग आगे ही आएंगे, पूरे पाकिस्तान में ही आएंगे। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, मगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो मैं शुरू में मैडम को भी कह रहा था कि नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। आप क्या हो, आपका पोटेंशियल क्या है, आपको पता नहीं होगा इस वक्त। आपके टीचर्स कभी कभी कहते हैं ना कि यार ये फिलहाल ब्राइट स्टूडेंट है, आप उस जाविये से जब उनको देखेंगे तो आपको पता होगा कि आपकी वर्थ कितनी है। मैं आपको सही बताता हूँ, शाह लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर से मैं पढ़ा हूँ, बहावलपुर यूनिवर्सिटी, गोमल यूनिवर्सिटी, ये यहाँ के जितने स्टूडेंट्स आते हैं आप बिलीव करें वो फॉरेन यूनिवर्सिटी के लोगों से मुझे नहीं लगता कि कम होंगे, नहीं लगता। उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, उनका फ्लुएंसी, उनका बोलने का अंदाज, यो मैन सिगरेट वो ज्यादा पिएंगे हमसे, बाकी आप पे और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो हमारे यहाँ है, हमारे बैक एंड पे, माइंड पे वैक्यूम है कि यार हमारा क्या होगा, सुना है ना तेरा क्या होगा कालिया। तो जो एनवायरमेंटली नॉन जिसे हम कहें कि कारपोरेट जैसे बड़े शहरों से जो लोग नहीं होते ना, उनके बैकअप माइंड में यही होता है कि कालिया तेरा क्या होगा। मगर बिलीव में आप वंस आप मार्केट में जाओ, हाँ ये होगा, 3-4 माह आपको रगड़ा ज्यादा लगेगा कि आपकी पॉलिशिंग की जरूरत होगी, बाकी आप पाकिस्तान के पार ही हो। अब बेहतर अपॉर्चुनिटी उसी को मिलेगी जो डिजर्व करता होगा, नॉट नेसेसरीली कि ये बहावलपुर वाला या सेक्टर खैरपुर वाला, कोई नहीं। तो पहली बात, बिलीव इन योरसेल्फ। इस्लामिक बैंकिंग पूरे पाकिस्तान के जितने भी बिजनेसेस हैं, आप लोग बहावलपुर की क्रीम हो इतना तो आपको पता होगा यू आर बेस्ड। आप, मुझे नहीं लगता कि आप 50,000 लोगों में से फिल्टर होके आए हैं। अब उस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में आपका नसीब आ गया, आपकी फैमिली बैकग्राउंड आपको अच्छा मिल गया, आपके दोस्त अच्छे मिल गए, आपको टीचर्स अच्छे मिल गए, यू आर लकी सो फार। अगर आप यहीं पे आज भी खड़ा होकर कोई बंदा कहे कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, तो आप यकीन करें आप पाकिस्तान की क्रीम है और यू आर वर्थ मिलियन ऑफ रुपीज। आपको पता है आपका एक बॉडी पार्ट कितने का है? तो कभी मिलियंस बिलियंस में भी नहीं होगा भाई। लिवर ट्रांसप्लांटेशन आपको पता है कि 8 मिलियन की होती है मैडम इंडिया में, अब वो रेट इससे भी बढ़ गए। रीजन भी कि खुदा ने आपको एक हेल्दी माइंड दिया है। सिर्फ 6 महीने लगाने से मुझे नहीं लगता कि आप लोग उनमें से उन किसी भी लोग, सर आपकी तो फॉरेन से आपकी स्टडी है, आपको क्या लगता है कि इन लोगों पे सिर्फ अगर हम 3-4 महीने, होपफुली आप करते नहीं होंगे, सिर्फ इनको ये रियलाइज कराएं कि आपकी वर्थ क्या है, ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। आखिर में एक छोटा सा क्विज जो इन्होंने स्किप कर दिया, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। कौन बताएगा मुझे स्टूडेंट में से? आप क्या हो, कोई बंदा बताएगा? कोई भी अपने बारे में। इम्प्रूवमेंट ही हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, तो पता चलेगा कैसे बताना है किसी को, पॉइंट ऑफ व्यू में। तो ये बता दे, अपना नाम ही बता दो। हाँ नाम बताओ, कोई एक बता दे जो मर्जी जैसे बता। Myself Jalil Ahmed. I have done diploma associate engineering in Science Institute of Technology. Now I come for more learning management technology. जबरदस्त ताली। जी जनाब। My name is Mohammad Uzaifa and my FSC from Superior College Jazman, and I'm basically from Jazman, and I do in Islam University Bhavalpur BBA Technology Management. जबरदस्त। बस एक 30 सेकंड की आपको हिंट थी। आपने नाम के बाद जो चीज़ बताई वो आप 25-20 साल के बाद की अपनी उम्र बता रहे हो। 16-17 साल आप बीच में खा गए। आई एम ABC, आई एम डन BSc MSc। यार जब आप पैदा हुए थे ना, तब भी आप इंसान थे उस वक्त से लेके। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको कायम आएंगी प्रैक्टिकल लाइफ में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगर कोई और सवाल हो तो हाजिर हैं। जी जनाब, थैंक यू वेरी मच।